अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्त खैरियत से होंगे और 5-10 मिनट ज़रा वेट कर लें, थोड़े दोस्त जॉइन कर लेते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। For everyone, AI in real life. This video will explore how students, professionals, and businesses are using AI today, focusing on text, voice, images, video, automation, and websites/apps. This seminar is organized by RTJ Punjab. This session matters because AI is already a part of daily life. The key is knowing how to use it, as AI helps both beginners and experts alike. AI is not the future, it's the present. This video is for everyone: students, professionals, business owners, freelancers, and beginners with zero AI background. You don't need technical skills, you just need curiosity. In simple terms, AI acts as a smart assistant. It helps you think faster and saves you time, not effort. Remember, AI does not replace humans, it supports them. We will cover several categories of AI, including text and writing, voice and speaking, images and video, presentations and sheets, automation and websites, apps and software. AI for text is the foundation layer. Tools like ChatGPT and Gemini can explain topics simply, write and rewrite content, summarize information, and brainstorm ideas based on your prompts. Students can use AI to explain hard topics, summarize long notes, create study plans, and improve assignments. AI removes confusion. Learning still stays with you. For professionals, AI can help with emails and reports, meeting summaries, presentations, and learning new skills faster. AI removes repetitive work, so you can focus on thinking. Business owners and freelancers can leverage AI for social media content, ads and captions, proposals, and client replies. AI saves money before it makes money. The most important skill is prompting. A simple formula includes defining who you are, what you want, the context, and the output format. Tailoring your prompt is key to effective results. AI voice assistants, or Talking AI, can talk like a human, explain concepts verbally, help beginners, and be used for language practice. This is huge for beginners and accessibility. For video, AI helps with short videos, ads, explainer videos, and social media reels. Video creation is becoming faster, cheaper, and easier with AI tools. When creating videos, I can create slide outlines, write slide content, improve flow, and simplify language. AI effectively removes the "blank slide" problem. AI automation means multiple AI tools working together, resulting in less manual work and faster workflows. Examples include auto email replies, lead tracking, and task automation. Real-world automation examples include processes like form to sheet to email, or chatbot to customer support. Automation is where AI saves the most time. AI for websites and apps helps build websites, mobile apps, and desktop tools. The key concept is, you describe, AI helps build. It is important to understand what AI cannot do. It cannot think like a human, replace human judgment, or take responsibility. AI gives suggestions. Humans make decisions. To start using AI today, follow these steps. 1. Pick one tool to master. 2.
Use it daily. 3. Ask better questions by refining your prompts. 4. Practice. And don't fear mistakes. Here is the final message. I won't replace you. People who use AI will. Stay curious. Start small and practice daily to stay ahead. Thank you for your time. We welcome any questions you may have. Welcome to अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को आवाज़ आ रही है? मुझे ज़रा कमेंट में बता दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आज का हमारा सेशन जो है ये एआई के ऊपर है और एआई को डेली यूज़ में हम किस तरह इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे फ़ायदा इससे ले सकते हैं और आप किसी भी फ़ील्ड से हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफ़ेशनल हैं या आप कोई भी काम करते हैं, तो आप एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और एआई से हम आज देखते हैं, आज काफ़ी चीज़ें हम एआई से बनाना सीखेंगे। जैसे कि इस सेमिनार का जो आपके पास पोस्टर आया था, वो एआई से बनाया गया था, वो देखेंगे वो कैसे बनाएँगे। फिर अभी जो आप वीडियो देख रहे थे, ये भी टोटल एआई से बनी है और इसको भी देखेंगे कि ये एआई से कैसे हम बना सकते हैं। और फिर प्रेज़ेंटेशन है, जो अभी आपके सामने मैं पेश करूँगा, उस प्रेज़ेंटेशन को एआई से कैसे बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद एआई की जो ऑटोमेशंस हैं उसको हम देखेंगे वो क्या होती है, वो हम किस तरह कर सकते हैं। फिर एआई से वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है। फिर हम कोशिश करेंगे अगर टाइम बचा तो एंड पे एआई से मोबाइल की जो ऐप्स हैं, वो भी बनाना देखेंगे। तो इसमें आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अगर आप बिगिनर हैं और आपको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है टेक्नोलॉजी की, तो आप ये इससे जो है सीख सकते हैं। तो ये हुज़ूर सजन साईं के जो एजेंडा है, जो नुकाती एजेंडा है, उसमें से एक जो एजेंडा तालीम का था और टेक्नोलॉजी वाला इसला जो साइंसी उलूम है, टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा है, उसको ज़हन में रखते हुए आरटीजे पंजाब की तरफ से इस सेशन का इनेकाद किया गया है। और अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैं जो प्रेज़ेंटेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये प्रेज़ेंटेशन आप देख रहे हैं, ये टोटल एआई से बनाई गई है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं, आप ये देख रहे हैं जो प्रेज़ेंटेशन में आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस, वीडियो, ऑटोमेशन और वेबसाइट्स एंड ऐप्स। ये सब चीज़ें आज हम एआई से बनाना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले टेक्स्ट है, टेक्स्ट बेस है, टेक्स्ट को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट से आप कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कोई अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्प लेनी है, स्टडी से रिलेटेड हेल्प लेनी है, तो आप इससे ले सकते हैं। और अगर आपने कोई रिसर्च करनी है, तो आप एआई से कैसे कर सकते हैं, इसको हम आज ब्रीफली देखेंगे। फिर वॉइस जो है सेकंड नंबर पे, वॉइस का मतलब है कि आप इससे बात कैसे कर सकते हैं। आप अपनी ज़बान में इससे बात कर सकते हैं, लाज़मी नहीं है कि इंग्लिश में आपने बात करनी है। इंग्लिश आप अपनी ज़बान में बात करके सवाल भी पूछ सकते हैं और जवाब भी ले सकते हैं। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि आपने वॉइस उठाई और आपने सवाल जवाब कर लिया, लेकिन पहले इसको थोड़ा-सा बताना पड़ता है, प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। इस प्रॉम्प्ट को देखेंगे, ये प्रॉम्प्ट क्या होता है। इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को जो बेसिक है वो देखेंगे कि हमने किस तरह एआई से सवाल जवाब करने हैं। फिर एआई से इमेजेस किस तरह बनानी है। जैसे कि आज का जो प्रोग्राम था, इसका जो पोस्टर आपके पास आया है, जिस पोस्टर से आपने जॉइन किया है, वो पोस्टर एआई से बना गया है। हम देखेंगे कि वो एआई से कैसे बनाया गया है, आप कैसे बना सकते हैं। अब उसके अंदर आप देखें, एक डिटेल्स जो सब दी गई है, पिक्चर्स भी लगी है, उसके अंदर लोगो भी यूज़ हुआ है, तो वो टोटल एआई ने बनाया है। इसमें हमने कोई भी जितना भी काम हुआ है, ये टोटल एआई से किया है। फिर जो सामने आपकी ये प्रेज़ेंटेशन अभी चल रही है, ये भी एआई से है, ये इमेजेस में आ गए। इस इमेजेस को देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे वीडियो बनाना, कि एआई से वीडियो कैसी बनाई जा सकती है।
और जो भी पहले हमने वीडियो प्ले की थी ये टोटल एआई से बनी थी। तो इसको हम देखेंगे कि ये वीडियो एआई से कैसे बनाई गई है। और उसके बाद हमने अगर मुख्तलिफ टूल्स को मुख्तलिफ वीडियो बना के पूरी एक वीडियो बनानी है आपने, वो आप एआई से बना सकते हैं। मुख्तलिफ वीडियोस को आपस में कंबाइन करके वो भी हम देखेंगे। और ऑटोमेशंस देखेंगे, एंड पे हम वेबसाइट बनाना देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा एआई का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकली चलेंगे आगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे, प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे, वीडियोस बनवाएंगे, फ़ोटोज़ बनवाएंगे, और एंड पे कोशिश करेंगे कि हम वेबसाइट्स को भी देखें। और एआई जो है हमारी वैसे डेली लाइफ है, इसका हिस्सा है, लेकिन हमें इसको सीखना है कि हमें इसको यूज़ करना सीखना है। ये हमें क्या करेगी, हम अगर बिल्कुल स्टार्टर हैं, बिगिनर हैं, तो हमारी ये हेल्प करेगी, हमारी हेल्प करेगी, जिसके थ्रू हम अपने काम को ईजी बना सकते हैं। तो उसके बाद आज का जो सेशन है ये किन किन लोगों के लिए है, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद है प्रोफेशनल्स, फिर बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स, और जो थोड़े बिगिनर्स हैं जिनको एआई का बिल्कुल नहीं पता, उन सब के लिए है। और जो चीज़ें आगे बताई जाएंगी वो सबको हेल्प देंगी, सभी उससे आप अपनी फील्ड में भी हेल्प ले सकते हैं। और एंड पे हम देखेंगे कि हम इससे कमा कैसे कर सकते हैं, मतलब अर्निंग वाला जो होगा उसको भी हम देखेंगे कि किस किस सोर्स से कैसे कैसे हम इससे अर्न कर सकते हैं। अब जो ये प्रेजेंटेशन आप देख रही हैं टोटल एआई से बनी है, इसको भी हम देखेंगे कैसे बनती है। एआई है क्या? एआई एक क्या है, एक स्मार्ट असिस्टेंट है। ये इंसान की तरह नहीं है। ये एआई का आप ऐसे समझें कि पुराना जितना भी डाटा है इसके अंदर फीड किया जाता है। मतलब आप इसके अंदर डाटा पहले हम फीड करते हैं, जो भी पुरानी डिस्कशंस हुई हैं, जो पुराना डाटा था, आप समझे बुक्स है या इंटरनेट पे जो डाटा पड़ा हुआ है, उन सब से क्या करता है, उन सब से ये डाटा लेके आता है। जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, इसके पास जो अवेलेबल डाटा होता है उसमें से ये आंसर करता है। तो अभी इंटरनेट पे जो कुछ मौजूद है, फॉर एग्जांपल आप देखिए जो डिस्कशन हुई हैं, जो रिसर्चेज हुई हैं, जो न्यूज़ पढ़ी हुई हैं, आप जब सवाल करते हैं तो उन सब के अंदर से ये डाटा लेके आता है। तो ये एक स्मार्ट असिस्टेंट है। ये आपकी हेल्प करेगा फास्ट थिंक करने के लिए, तेज़ आप सोच सकते हैं, और जल्दी आपने कोई काम करना है, आपका टाइम ये आपका जो है सेव करवाएगा। तो आगे हम देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि टाइम सेव हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज तो हम टेक्स्ट बेस्ड एआई को आप मैसेज दे के, टेक्स्ट लिख के आप इससे कोई क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इससे आप वॉइस से आप हेल्प ले सकते हैं, आप इससे इमेजेस बना सकते हैं, हम पहले डिस्कशन की थी। उसके बाद इससे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अभी हम बनाएंगे भी। फिर ऑटोमेशंस कैसे इसे करवा सकते हैं, ऑटोमेशंस को हम देखेंगे कि ऑटोमेशन होती क्या है। फिर वेबसाइट्स, ऐप्स और सॉफ्टवेयर ये सभी बन जाता है। डेस्कटॉप ऐप बनवानी है, मोबाइल ऐप बनवानी है, वेबसाइट बनवानी है, ये सब आप इससे बनवा सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे बनाएंगे भी। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी, दो टूल्स को आज हम यूज़ करने जा रहे हैं, एक है चैट जीपीटी और दूसरा है जेमिनी। तो अब हम इससे सवाल करेंगे। जब भी हमने किसी से सवाल करना होता है तो हम उसको तरीकाकार होता है ना, हर एक बंदे की ज़ुबान होती है, एक तरीका है। हम जब इंसानों से बात करते हैं तो हमारा तरीकाकार और होगा। अब एआई है तो उसकी जो ज़ुबान है उससे जिस तरह बात करनी है तो उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बेस पे जाएंगे, और इसमें से मैंने कुछ ऊपर प्रॉम्प्ट लिखे हैं कि सबसे पहले जो है, अगर आपने किसी चीज़ की हेल्प लेनी है तो आप एआई को कहोगे कि एक्सप्लेन करो। मतलब अगर आपका एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आपने हेल्प लेनी है किसी चीज़ के बारे में, आपने हेल्प लेनी है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप उसको, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है ऊपर, पर आप क्या कहेंगे, एक्सप्लेन, और आगे टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद आप कहेंगे इन सिंपल इंग्लिश एज इफ़ आई एम अ बिगिनर। अब उसको बता देते हैं कि मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे इसका पता नहीं है, आप मुझे इसका जवाब दो। अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो ऐसी इंग्लिश बता देगा जो आपको उसकी समझ नहीं आएगी। तो इस तरह आप उसको ईजी अल्फाज में आप उसको कहते हैं। तो वो शॉर्ट एग्जाम्पल के साथ वो ईजी अल्फाज के अंदर वो आपको बताएगा। ये आप, अगर आपने उससे टॉपिक को एक्सप्लेन करवाना है तो आप इस तरह करेंगे। फिर उसके बाद होता है राइट और रीराइट। तो अगर एक टेक्स्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो उसको आपने रीराइट करवाना है, उसकी लैंग्वेज चेंज करवानी है। अगर मुश्किल है तो उसको आसान अल्फाज में आपने करवाना है, तो आप क्या कहेंगे, ये मैंने दूसरा जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है नंबर 2 के ऊपर, तो आप उससे रीराइट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद है समराइज़। अगर आपने करवाना है, एक टेक्स्ट आपके पास आता है, या आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा पैराग्राफ आ गया है, या आपके पास कोई फॉर एग्जांपल बुक आ गई है,
तो आप उसको भी समराइज़ करवा सकते हैं। बुक आप इसको देंगे तो उसका समराइज़ कर देगा। इसको हम प्रैक्टिकली आगे देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपका एक बिगिनिंग जो है आपको आइडियाज़ के लिए, क्योंकि ऐसे दोस्त हैं जिनको पता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये एक टेक्स्ट देंगे तो वो उसको समरी उसकी जो है वो लिख के दे देगा। फिर उसके बाद आप अगर आपने उससे आइडियाज़ लेने हैं, ब्रेनस्टॉर्म आइडिया, मतलब कोई आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपने अगर उससे आइडियाज़ लेने हैं तो आप उसको एंड पे जो ये प्रॉम्प्ट है वो आप देंगे तो वो उसका जवाब देगा। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है कि एआई को उसकी ज़बान के अंदर हमने एक क्वेश्चन करना होता है या कुछ बताना होता है, वो एक प्रॉम्प्ट कहलाता है। प्रैक्टिकली हम आगे करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको अभी आइडिया दे रहा हूँ। तो उसके बाद ये था कि हमने अगर टेक्स्ट से उससे बात करनी है। फिर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को अपनी डेली लाइफ के अंदर कोई हेल्प चाहिए, फॉर एग्जांपल स्टडी से रिलेटेड चाहिए, तो टॉपिक्स एक्सप्लेन करवाने हैं तो एआई आपको करके दे दिया करेगा। फिर उसके बाद ये मैंने कुछ यूज़ केसेस लिखे हैं, जैसे एक्सप्लेन हार्ड पॉइंट सिंपली। कोई मुश्किल अगर आप उसको पॉइंट्स देंगे तो उसको वो सिंपल करके आपको दे देगा। मतलब आपको बुक है, आप स्टडी कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो वो आपको क्या करेगा, एक सिंपल अल्फाज के अंदर उसको वो जो है एक्सप्लेन करके दे देगा। फिर उसके बाद अगर आपने लॉन्ग नोट्स हैं आपके पास, अब क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, चैट जीपीटी है और जेमिनी है जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पूरी बुक है या लॉन्ग नोट्स हैं 3-4 पेजेस के, और आप उसकी समरी उससे करवाना चाहते हैं, तो आप उसको खाली सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करेंगे चैट जीपीटी के अंदर, तो आपको क्या करेगा कि उसकी समरी आपको वो लिख के दे देगा। ठीक है। उसके बाद आपने स्टडी प्लान्स लिखवाना है, असाइनमेंट्स आपने इम्प्रूव करवानी है, वो अब सब आपको क्या करेगा, एआई करके देता है। ये स्टूडेंट्स के लिए एआई ये हेल्प करता है। तो इसको हम कुछ एग्जांपल आगे करके देखेंगे। अभी थोड़ा सा हम आइडियाज़ ले रहे हैं। उसके बाद जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अपनी फील्ड में हैं या जॉब कर रहे हैं, उन सब के लिए ये ऐसे हेल्प करता है कि आपको ईमेल्स लिख के देगा, आपको रिपोर्ट्स बना के देगा, और आपकी जो मीटिंग होगी उसकी समरीज भी आपको वो लिख के दे दिया करेगा। फिर प्रेजेंटेशन है, जैसे अभी हम ये प्रेजेंटेशन के ऊपर ये बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर हम अभी देख रहे हैं ये, तो ये प्रेजेंटेशन भी आपको क्या है, एआई बना के देगा। तो अभी हम इसको आगे बना के देखेंगे। फिर अगर आपने कोई न्यू स्किल सीखनी है, तो पहले ये होता था कि आपको कोई नई स्किल सीखने के लिए बहुत तंग होना पड़ता था, आपको पता ही नहीं होता था चीज़ें कैसे सीखनी है। जब से एआई आया है तो उसने आपके लिए चीज़ें आसान कर दी हैं। कोई हम आगे इन चीज़ों को देख करके भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से 1-2 हम अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ, और ये है चैट जीपीटी ओपन है अभी हमारे सामने। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन, अच्छा। अभी आपके पास ये जो टूल शो हो रहा है, इसका नाम है चैट जीपीटी। तो इसके ऊपर जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये हमें क्या करके देगा, हम ईमेल हमने कोई लिखवानी है फॉर एग्जांपल, हम अपनी लैंग्वेज में भी इसको बता सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में भी बता सकते हैं, उर्दू में भी बता सकते हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूँ राइट एन ईमेल फॉर, अब देखो नीचे कुछ सजेशन भी दे रहा है कि आपने ईमेल, अगर मैं इसको कहूँगा ना, या इसको सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि आप एक्ट करो, एक्ट एज कंटेंट राइटर। ठीक है। उसके बाद इसको कहेंगे राइट एन ईमेल फॉर, अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये लफ्ज़ मैंने क्यों लिखा। एआई को सबसे पहले ट्रेन करना पड़ता है, एआई को सबसे पहले बताना पड़ता है कि आप हो कौन। आप सबसे पहले, मतलब एक लफ्ज़ है हू आर यू, सबसे पहले उसको बताएंगे ना कि आप एक कंटेंट राइटर हो। जब उसको बताएंगे ना आप कंटेंट राइटर हो, तो वो फिर उसके हिसाब से ही चलता है। ठीक है। फिर अब मैं इसको कह रहा हूँ ना, राइट एन ईमेल फॉर ऑनलाइन सेशन। ठीक है, अबाउट एआई ऑन 1 फरवरी 2025, ठीक है, 2026, ऑर्गेनाइज्ड बाय आरटीजे पंजाब। अब देखो ये एक्ट करेगा और ये मुझे पूरी ईमेल मुझे लिख के दे देगा ये। ठीक है।
अब इसने उसका सब्जेक्ट लाइन लिखी है, फिर उसके बाद नीचे क्या किया इसने, ये सारा ईमेल लिख के दे दिया, जिसमें इसने डेट लिखी है, इसने टाइम लिखा है, इसने मोड लिखी है। तो अभी इसको मैंने अभी ईमेल इसने मुझे लिख के दे दी। अब मैं इसको इसके अंदर कुछ एडिशन कराना है, इसमें कोई चेंजिंग करवानी है, या इसको मैं कहूँगा शॉर्ट करो इसको, ठीक है। अब उसको पता है कि ऊपर हमने क्या बात की है, तो उसके मुताबिक ही वह क्या करेगा, उसको शॉर्ट कर देगा। तो ये प्रोफेशनल के लिए क्या कर रहा है, ये हमें ईमेल लिख के दे रहा है। फिर हमने अगर शॉर्ट समरीज लिखवानी है किसी चीज़ के बारे में, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लेके आऊँगा तो उसकी वो समरी भी लिख के दे देगा। अब इमेज के बारे में हम बात करते हैं, ये हमें इमेज भी बना के देता है। क्रिएट इमेज पे यहाँ मैं क्लिक करूँगा। अब मैं इससे इमेज मैंने बनवानी है, तो पहले सबसे पहले क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि हमें एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि हमें उसको उसकी ज़बान में बताना है कि आप ये हो और आपने ये करना है, ठीक है। इसको मैं अभी हम इंग्लिश के बजाय यहाँ पे रोमन उर्दू में बात करेंगे, आप देखेंगे उसको समझ आ जाएगी उस चीज़ की। मैं कहता हूँ मुझे एक इमेज बनवानी है जो कि एक फेसबुक पोस्ट होगी, ठीक है, और वो ऑनलाइन सेशन से रिलेटेड है, जो कि एआई पर है, और टॉपिक बताऊंगा यहाँ पे मैं उसको, ठीक है, एआई फॉर एवरीवन, और ऑर्गेनाइज्ड बाय आरटीजे पंजाब। अब ये देखो मैंने इसको उर्दू में बताया है, रोमन में लिखा है, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट इमेज। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसको सारी समझ आ गई है जो हमने यहाँ पे बात की। अब जो मिस्टेक करेगा इसको हम फिर ठीक करवा सकते हैं। अब मैंने इसको ये भी बताया कि आपने क्या करना है, फेसबुक पोस्ट बनानी है, ठीक है, और रिलेटेड किससे है, ऑनलाइन सेशन है, और टॉपिक भी उसको बता दिया है, और ऑर्गेनाइज भाई आरटीजे पंजाब है। अब ये क्या करेगा, ये इमेज हमें यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे अब ये ठीक है, इश्यूज़ हैं, फिर इसको रिजोल्व कराएंगे। अब इसके अंदर आप देखेंगे ये इमेज ठीक नहीं होगी, इसमें इश्यूज़ होंगे, इसमें आरटीजे का लोगो भी नहीं होगा, ठीक है, और उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें, डेट टाइम हमने उसको नहीं बताया, वो सारी हम क्या उसको ठीक करवाएंगे। अभी देखें ये इसने अभी सिंपल सी इमेज बना के दे दी है, आरटीजे पंजाब लिख दिया। अब इसमें लोगो नहीं है आरटीजे का, ठीक है, हमने जो पोस्टर है उसमें लोगो भी यूज़ किया। तो मैं अगर हमने इसमें लोगो यूज़ करना है, यहीं से मैं क्या करूँगा, अपलोड फाइल्स में जाऊँगा, ठीक है, और इसको लोगो शेयर कर दूँगा, ठीक है, और इस लोगो को इमेज में यूज़ करो, ठीक है। अब उसको जैसे-जैसे हम प्रॉम्प्ट देते जाएँगे, जैसे-जैसे उसको एक्सप्लेन करते जाएँगे, उतना अच्छा वो उसको बनाता जाएगा। अभी ये देखें, ये हमारी इमेज दोबारा बनाएगा। इससे ये है चैट जीपीटी की इमेज आप देख रहे हैं, इसके बाद हम जेमिनी से भी बनवाएँगे। जेमिनी की इमेजेस मैं आपको दिखाऊँगा, जेमिनी की इमेजेस ऐसी वो बना रहा है कि जैसे रियल इमेजेस होती हैं, और जेमिनी से हम वीडियोज़ भी बना के दे देखते हैं। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से जेमिनी की। स्क्रीन आ रही है ना सबके पास? अच्छा, अब देखें, ये है गूगल का एक टूल है जेमिनी। अभी हम सिर्फ बिगनर्स के लिए बात कर रहे हैं, आगे हम थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे भी जाएँगे, वेबसाइट पे भी जाएँगे, तो आप लोगों ने कनेक्ट रहना है। अच्छा, आप देखें,
अगर हम इमेज यहाँ से बनवानी है तो इसका भी एक टूल है, क्रिएट एन इमेज। इसको मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल इसको कोई मैंने प्रॉम्प्ट देना है। वही प्रॉम्प्ट जो हमने इधर दिया था, जो हमने लिखवाया था यहाँ से, इसको मैं कहता हूँ कि इसका प्रॉम्प्ट लिख दो, राइट प्रॉम्प्ट फॉर दिस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट अगर दूंगा तो ये देखेंगे इसकी इमेजेस आपने देखनी है, ये इमेजेस उससे अच्छी बना के देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये करता हूँ इमेज, ये मैंने प्रॉम्प्ट बनवाया है उससे, चैट जीपीटी से, जिसमें चैट जीपीटी ने ये सारा बताया है कि आपने एक फेसबुक पोस्ट बनानी है, उसका टॉपिक ये होना चाहिए, और उसने साथ में ये बताया कि डिज़ाइन कैसा होगा, मॉडर्न प्रोफेशनल, और उसके बाद कलर उसने बताया है ब्लू एंड टेक इंस्पायर्ड, ये हो गया। फिर उसके बाद ये मेंशन करना है उसने एंड पे, और साथ में अभी लोगो नहीं है, लोगो बाद में अटैच करवाएंगे। अभी देखें ये हमने इमेज सेलेक्ट की है और यहाँ पे ये इमेज बना के देगा। ठीक है, ये अब इसने इमेज इस तरह की बना के दे दी है। अब देखें इसके अंदर हम इश्यूज हैं, और इसमें लोगो नहीं है, ऐड दिस लोगो टू द इमेज। जितना हम उसको प्रॉम्प्ट अच्छा देंगे, जितना हम उसके साथ सही तरह से उसको बताएंगे, उतना वो अच्छा समझेगा। अब ये लोगो मैंने दे दिया है, तो ये लोगो के साथ अभी इमेज को, पोस्टर को बना के देगा। अब देखें इसने ऊपर टाइटल लिखा, नीचे ऑनलाइन सेशन है, ये नीचे लोगो लगा दिया। अब इसके हम अगर कलर स्कीम चेंज करवानी है, इसको मैं कहूँगा कि ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगा और इसको सिंपल पोस्ट के अंदर बनाओ, वो फिर इसको बना के दे देगा। ये हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं ये है जेमिनी। तो ये है इमेज जनरेशन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो इन इमेजेस को आप क्या कर सकते हैं, फिर फेसबुक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब देखें इसके अंदर हम बात करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक फील्ड है, जो सोशल मीडिया मैनेज करते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, उनको वो जो पोस्ट है वो डिज़ाइन करते हैं। तो आप जब से एआई आया तो इसने काम आसान कर दिया। अब डेली बेस के ऊपर आप इससे पोस्टें बनवा सकते हैं, इससे इमेजेस बनवा सकते हैं, वो अच्छी सी इमेज बना के दे दिया करेगा। तो इसी तरह से जितना अच्छा इसको समझाएंगे, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, वो उतनी अच्छी इमेज जो है वो बनाता जाएगा। अच्छा, ये हम जो भी बात कर रहे थे ये है इमेज जनरेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और दोबारा से हम अपनी स्लाइड के ऊपर आते हैं। अभी हम आगे जाएंगे, अभी आगे हमने प्रेजेंटेशन बनाना भी देखनी है, वीडियो बनाना भी देखनी है, वेबसाइट बनाना भी देखनी है। तो जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट देंगे उतनी अच्छी आपको ये चीज़ें बना के देगा। अच्छा, उसके बाद अभी जो फ्रीलांसर हैं या बिजनेस ओनर हैं वो एआई से कैसे हेल्प ले सकते हैं। एक तो आप सोशल मीडिया जो कंटेंट है आपका, जिसमें हमने अभी देखा था, इमेज बनानी देखी थी, और फिर उसके बाद कैप्शन होता है। अभी मैं इसको आपके सामने प्रॉम्प्ट भी लिखूंगा, इसको मैं बताऊंगा कि सोशल मीडिया की जो आपने पोस्ट तो बनाई है, लेकिन इसके ऊपर कैप्शन भी लिख के दो, जो ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं ना, वो भी आपको ये लिख के देगा। और फिर एड्स के कैप्शंस होते हैं, फिर प्रपोजल होते हैं जो अपवर्क पे लोग शेयर करते हैं, वो सब लिख के देता है। फिर आपके क्लाइंट्स आपके पास जो मैसेज करते हैं, उनके रिप्लाइज हैं, वो सब आपको ये करके देगा, उसके रिप्लाइज भी देगा। तो एआई का मतलब ये है कि आप का जो टाइम है ये बचा रहा है। उसके बाद आपकी जो इतनी एफर्ट्स होती थी, आप अब पूरा सोशल मीडिया बनवाने के लिए एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करेंगे, फिर उसके बाद उसको सारा बताएंगे, इतना टाइम, एक एक पोस्ट 3-3 दिन बाद आ रही होती। तो एआई को आप सिंपल बताएं, वो आपको 2 मिनट भी नहीं लगते, आपको वो पोस्ट बना के दे दिया करेगा। तो उसके बाद अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रॉम्प्टिंग है। प्रॉम्प्टिंग को पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होती है। जैसे एक लैंग्वेज है ना, हम आपस में जो डिस्कस करते हैं, वो जो लैंग्वेज होती है, तो एआई को जिस ज़बान में हमने समझाना है, जिस ज़बान में उसको बताना है, वो है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि उसको बताना होता है कि अब उसको पहले बताना होता है कि आप कौन हो, ठीक है, और
अपने बारे में पहले उसको ट्रेन करना होता है कि आप ये करो, आप ऐसे एक्ट करो। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर एक बंदा लॉ की फील्ड में है तो उस वो क्या कहेगा, एक्ट एज अ लीगल असिस्टेंट, ठीक है। उसको लीगल असिस्टेंस लेनी है तो उसके बाद क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसके बाद मैंने एक पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि समराइज दिस प्रॉम्प्ट इन सिंपल इंग्लिश एंड हाईलाइट पॉसिबल रिस्क। अब एक आम बंदा है, उसको वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या लीगल जो डाटा है उसको समझ नहीं आती है। एआई को जब देंगे तो वो आपको समझा देगा। अगर ये एक आपके पास मेडिकल रिपोर्ट आई है, वो आप डॉक्टर को दिखाएंगे, तो आप एआई को भेजेंगे तो आपको एआई सारा वो समझा देगा, ठीक है। एआई में बस आपने क्या करना है, पिक्चर अपलोड करनी है, चैट जीपीटी में अपलोड करें आप या जेमिनाई में अपलोड करें, तो आपको वो एक्सप्लेन कर देगा। फिर अगर आप मार्केटिंग, आप अगर आपका कैफे है या आपका बिजनेस है, तो आप उसको क्या कहोगे, एक्ट एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट। वो क्या करेगा, मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। और फिर आपने उसको बताना है कि मैं ये बिजनेस रन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आई रन अ स्मॉल कैफे। आप उसको कहोगे कि मैं एक कैफे रन करता हूँ, या आप जो भी बिजनेस रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टोर है या कुछ भी है। फिर आपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मैनेज करना है। आपको पता है सोशल मीडिया अगर आपका अच्छा है तो आपके पास ऑनलाइन ही कस्टमर आते हैं। तो लोग पाकिस्तान में तो कम है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली जाएं, मैं खुद जैसे काम करता हूँ क्लाइंट्स का, तो सोशल मीडिया मैनेज के लिए वो स्पेशल जो है लड़के रखते हैं, फ्रीलांसर रखते हैं, जिनको वो $300-400 ऐसे पे करते हैं। तो सोशल मीडिया मैनेज करना भी ईजी है, ठीक है। इस तरह की आप काम भी पकड़ सकते हैं, सोशल मीडिया को भी मैनेज कर सकते हैं। पोस्टें चैट जीपीटी से बनवाएं, कैप्शन उससे बनवाएं, आप खाली उस पर पोस्ट कर दिया करें। अगर आप खुद डिज़ाइन करने बैठेंगे तो 9 to 5 भी आपका टाइम जो है कम होगा, लेकिन जब एआई की तरफ आएंगे तो आपका वही 9 to 5 वाला काम आपका 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपकी पोस्ट हो जाया करेगी। तो एआई इतना आपका टाइम बचा रहा है। तो अगर आपने उससे हेल्प लेनी है किसी रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्टडी है, अगर आपने असिस्टेंट लेनी है, मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछना है, वो हर चीज़ आपको बताएगा। लेकिन उसको पहले प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। उसको जो लफ्ज आप देख रहे हैं ना तीनों प्रॉम्प्ट्स के अंदर, एक्ट एज अ मार्केटिंग, उसको पहले एक्ट करवाना पड़ता है, कि उसको पहले बताना पड़ता है कि आप ये हो, लीगल असिस्टेंट हो, आप मेडिकल असिस्टेंट हो, आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हो। फिर उसके बाद वो उस तरह जाके क्या करता है, एक्ट करता है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, एआई वॉइस असिस्टेंट। एक तो हम अभी टेक्स्ट से बात कर रहे थे, हमने एग्जांपल देखी थी, इमेज बनवाई थी ना, ईमेल हमने लिखवाई है, हमने इमेज बनवाई है। अब हम क्या करेंगे, वॉइस असिस्टेंट एआई को काम करवाएंगे। मतलब उसको हम बोलेंगे, उसके साथ बात करेंगे और उससे फिर सवाल जवाब भी पूछेंगे, ठीक है। अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से ही पूछता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं ज़रा। इधर चैट जीपीटी में ज़रा शेयर करने लगा हूँ और इसमें हम इससे बात करेंगे, ठीक है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो इस असिस्टेंट पे कर रहे हैं। अभी देखें वो आपको मैंने जो ऊपर इमेज बना के दिखाई थी कि ये मैंने बताया था उसको रोमन उर्दू के अंदर, साथ में मैंने वैसे इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन अगर उर्दू में बात करोगे तो वो आपको प्रॉम्प्ट लिख देगा। अब इसमें आप देखें, चैट जीपीटी में दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि यूज़ वॉइस, और मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँगा यूज़ वॉइस के ऊपर, यहाँ से ये मेरा माइक लेगा, इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ, तो इसे मैं बात कर सकता हूँ। हेलो, हेलो चैट जीपीटी, कैसे हो? हेलो। यहाँ से इधर से क्या कर सकते हैं, हम इसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अगर हम इसको जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने इसको कहना है कि ऐसे एक्ट करो, आप एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो या आप एक लीगल एक्सपर्ट हो, तो मुझे इस बारे में सवाल का जवाब दो। इसी तरह आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आपने अगर टैक्स से रिलेटेड इससे हेल्प लेनी है, इसको पहले आपने एक्ट करवाना है, बताना है कि आप पाकिस्तानी इस फील्ड के एक्सपर्ट हो, आप
वॉइस में इधर कमेंट में बता दें सबको वॉइस आ रही है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम अभी इसमें डिस्कस कर रहे थे कि इसमें आप इसमें क्या कर सकते हैं, फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज भी बनवा सकते हैं उस पे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, स्टडी आपने लर्न करना है कुछ, और वेब रिसर्च और इन सब में आपकी क्या करता है, ये चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है इन सब के अंदर। अच्छा, उसके बाद इमेज जनरेशन को तो हमने देख लिया, इमेज जनरेशन को देख लिया हमने, इसमें प्रॉम्प्ट्स को भी देख लिया कि आपने अगर इसे प्रॉम्प्ट्स लिखवाना है तो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। और उसके बाद आगे हम चलते हैं कि हम वीडियो जनरेशन की तरफ आते हैं। प्रॉम्प्ट्स का तो आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, मतलब प्रॉम्प्ट मुझे कमेंट में बताएं आपको वो क्लियर हो गया प्रॉम्प्ट क्या होता है, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम आगे देखने जा रहे हैं कि एआई से प्रेजेंटेशन कैसे बनवानी है, एआई से प्रेजेंटेशन कैसे बनवानी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसको टॉपिक देता हूँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से, शेयर स्क्रीन। ठीक है, ये मैंने अभी प्रेजेंटेशन ऑन की है। ये प्रेजेंटेशन है जो मैंने चैट जीपीटी इससे एआई से ही बनवाई थी। तो इसको हम देखते हैं कि ये एआई ने हमें प्रेजेंटेशन कैसे बना के दी। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है अपने बिजनेस के लिए प्रेजेंटेशन बनवानी होगी। ये देखिए इसके अंदर ये सब पेजेस हैं और लेफ्ट साइड पे आरटीजे का लोगो भी लगा हुआ है, और बाकी जो जो टॉपिक्स मैं इसको बताता गया हूँ वो उसकी बनाता गया है। और ये सारी आपने देख जितने भी ये पेजेस बने हैं ये सब क्या है, एआई ने बनाए हैं। तो ये अभी मैंने जो ओपन किया हुआ है ये गूगल की प्रेजेंटेशन है। तो जो ए इसके पीछे टूल जो यूज़ हुआ है वो हुआ है जेमिनी। तो अभी हम ज़रा देखते हैं ये कैसे बनाएगा। एक तो अगर आपके पास ये पेड वाला टूल है तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है कि हेल्प, ये इधर देखें अगर, तो इधर आपके पास ऑप्शन दे रहा है, ये गूगल की तरफ से है। ये थोड़ा पेड वालों के लिए, लेकिन हम फ्री वालों के लिए भी देखते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बताते हैं कि आपने ये स्लाइड बनानी है। स्लाइड का आप टॉपिक बताएंगे उसको। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ ज़रा, कोई टॉपिक जैसे हमने यहाँ पे इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एआई इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ डेली लाइफ, द रियल गैप इज़ नोइंग हाउ टू यूज़ इट, और उसके बाद एआई हेल्प बिगिनर्स एंड एक्सपर्ट अलाइक। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक मिनट टेक्स्ट लेकर आता हूँ कोई, उसके बाद इसके अंदर हम पेस्ट करते हैं तो ये हमें वो क्या करके देगा। फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट था मेरे पास, यहाँ पे मैं आके पेस्ट करूँगा। सेम यही यहाँ से इमेज बना के देगा हमें स्लाइड। यहाँ पे स्लाइड पे मैंने क्लिक किया तो इसने स्लाइड बना के दिया। सेम यही जो जेमिनी पे हम जा रहे थे वहाँ से भी बना के देखेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि एक इधर आते हैं हम और न्यू स्लाइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल न्यू स्लाइड, और उस स्लाइड के अंदर जाके हमने क्या करना है, जो इमेज ये बनाएगा, स्लाइड जो बनाएगा उसको पेस्ट कर देना है। अब देखें, ये मैंने इसको एक पोस्ट दिया, एक टेक्स्ट दिया था ऊपर, देखें इसने उसकी क्या किया, मुझे स्लाइड बना के दे दिया। ठीक है, दिस इज जस्ट, ये मैंने टेक्स्ट लिखा था कि ये एक टेस्ट स्ट्रीम है, उसने ऊपर लिख दिया टेस्ट स्ट्रीम ऑडियो एंड वीडियो चेक टेस्टिंग सेटअप फॉर एआई फॉर एवरीवन। ये पहले हम टेस्ट कर रहे थे तो उसी के टेक्स्ट पड़ा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर डाला। तो इसके अंदर क्या है कि उसने देखें खुद ही इतनी अच्छी स्लाइड बना के दे दी है। ठीक है, और वेबसाइट को हम एंड पे देखेंगे, और यहाँ पर आप देखें, इसके बाद आप देखें ये पूरा इसने
टाइटल भी ऐड किया खुद से, मैंने सिर्फ ये टेक्स्ट दिया, इसको ये बताया भी नहीं है कि ये हेडिंग है और ये है और इसके अंदर ये इमेजेस हैं। ये देखिए इसने ये मुझे स्लाइड बना के दी थी। अब इसको क्या करूँगा, इंसर्ट इन न्यू स्लाइड। अब जो हम प्रेजेंटेशन जिस पे बात कर रहे हैं उस प्रेजेंटेशन के एंड पे ये स्लाइड ऐड होगी, ठीक है। अब इसमें कोई चेंजिंग करवानी है, जैसे ये आरटीजे के ऊपर उसने लिख दिया आरटीजे पंजाब, यहाँ पे हमने लोगो यूज़ करना है तो उसको लोगो भी हम इससे ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे इधर आता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ, मैं आपको लोगो ऐड करना भी बताता हूँ। ये टेक्स्ट ऐड किया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी लोगो इंसर्ट करता हूँ आरटीजे का जो है। इतना तो आपको प्रेजेंटेशन में इतना टेक्स्ट ऐड करना तो आप लोगों को मेरे ख्याल से आता होगा। यहाँ पर ये लोगो आ गया, ठीक है, इस साइड पे लोगो है। अब क्या करूँगा, ये नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है ब्यूटीफाई दिस स्लाइड, इस पे मैं क्लिक करूँगा। अब ये लोगो के साथ ही इसको ब्यूटीफाई करके दे देगा। और यहाँ पर आप देखें अभी ये बना रहा है, स्लाइड बना के दे रहा है हमें, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे चलेंगे। अभी हमने बहुत कुछ बनाना है, अभी हमने वीडियोस भी बनानी है, अभी हमने वेबसाइट भी बनानी है। तो आप लोगों ने इसको शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग सीख सकें। अभी वेबसाइट भी सीखेंगे और अगर टाइम बचा तो ऐप पे, क्योंकि ऐप और वेबसाइट सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं। उसको हम अब आपको जो है कोई बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बस आपको क्लिक्स पे है। ये देखिए अब इसने क्या किया, इसने लोगो भी ऐड करके दे दिया, ठीक है। देखिए इधर लोगो आ गया, ठीक है। ये टेस्टिंग सेटअप है, ये सारा देखें इसने इतनी इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे बताएं आपको कितनी मेहनत करनी पड़नी थी, इसको सारा सेटअप करना, फिर ये आपको आइकन्स लेके आना, वो इतना। और देखें कलर स्कीम चेक करें आपने, आरटीजे का जो कलर स्कीम है और उसके साथ इसने मैच किया, जो बैकग्राउंड है और टेक्स्ट है उसके साथ उसने मैच किया, ठीक है। अगर हमने चेंज करवाना है कुछ, हम इससे इजीली करवा सकते हैं। तो ये तो मैं आपको अभी जो दिखा रहा था, ये तो गूगल का अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना ये पेड है, ठीक है। हम अब आते हैं जो हमारे पास जो ऑप्शन था फ्री वाला, जिससे हम पहले देख रहे थे, जिमनाई के अंदर। जिमनाई में जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर उसको बताते हैं उर्दू में ही, रोमन उर्दू में ही बताएंगे कि आप इसको क्या करें, इसकी स्लाइड बना के दें। तो वो क्या करेगा, स्लाइड बना के देगा। तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ और दोबारा जाता हूँ स्क्रीन शेयर और यहाँ से हम करते हैं जिमनाई। अच्छा, ये वही दोबारा से ओपन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर अभी हम इससे स्लाइड जो हमने पहले बनवाई थी प्रेजेंटेशन वाली, इससे हम अभी क्या करें, प्रेजेंटेशन बनवाने वाले हैं। अभी मैं इसको क्या करूँगा, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। अगर आप इसको रोमन में बता सकते हैं तो ये क्या करेगा, उसी टॉपिक के ऊपर बना देगा। इसको कहोगे मुझे इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन की स्लाइड बना के देगा, ठीक है। ये स्लाइड का मैं इसको कहा है, तो आप ये देखेंगे ये स्लाइड की इमेज बना देगा। उसको क्या करेंगे, आप उसको सेव करें और अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आके पेस्ट कर दें। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए आपने उसको बताना है। जो ऊपर मैंने टेक्स्ट लिख के दिया है ये वो था। और उसके बाद देखें ये इसने क्या किया, इसकी एक पिक्चर बना के दे दिया, ठीक है। अब इसमें अगर इश्यूज हैं, क्योंकि इसने जो कलर स्कीम है ऊपर सेम थी, इसने वो सेम पैटर्न ही रखा हुआ है। तो इसके अंदर हम इसको कहेंगे कि आई नीड, मैं इसको कहता हूँ आई नीड स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको मज़ीद इम्प्रूव करेगा। मतलब इसको जब तक काम नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा बार बार से प्रॉम्प्ट देते जाएंगे ताकि वो ट्रेन होता जाएगा, फिर उसके हिसाब से ये जो है रिस्पॉन्स करेगा। अभी क्या करेगा ये आप देखें, यहाँ पे इसने देखिए यहाँ पे एआई मिस्टेक कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टॉपिक बताऊँगा ऑन दिस टॉपिक, और या टॉपिक दे दें या इसको आप बता दें कंटेंट, या जिस तरह का भी है, ऑन दिस कंटेंट कह सकते हैं हम इसको, ऑन दिस कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन की इमेजेस बनवा सकते हैं और उसको अपनी प्रेजेंटेशन में जाके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे। मज़ीद भी आपको अगर कहेंगे तो हम इस पे कर लेंगे, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। हमने अभी इमेजेस को तो हमने देख लिया और हमने स्लाइड्स को भी देख लिया। अब देखें ये सही नहीं चल रहा, हम न्यू चैट ओपन करेंगे। न्यू चैट के अंदर हम इसको कहेंगे, फिर देखेंगे ये थोड़ा सा बेटर बनाएगा। तो अब हम इसके अंदर हमने इसको साइज़ नहीं बताया, जो स्लाइड का एक साइज़ होता है ना, या क्रिएट स्लाइड इसको ऐसे कह देंगे,
या कहेंगे एक्ट एज, पहले इसको जो प्रॉम्प्ट हमारा था ना वो बताएंगे, एक्ट एज अ प्रेजेंटेशन डिजाइनर या क्रिएटर या ग्राफिक डिजाइनर, प्रेजेंटेशन डिजाइनर एंड क्रिएट अ स्लाइड। अच्छा, ये इसको बता दिया हमने। मतलब जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, जितना अच्छा इसको बताएंगे, उतनी अच्छी ये हमारी क्या करेगी, हेल्प करके देगा। तो आप देखें प्रेजेंटेशन बनाने में आपको कितना कितना टाइम लगता था, तो अब आपका टाइम जो है वो सेव होगा इससे। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ज़रा। जो प्रेजेंटेशन हमारी बनी थी, उस प्रेजेंटेशन की हमने क्या करनी है, वीडियो बनानी है। जैसे मैं स्टार्ट में, हमने सेशन के स्टार्ट में एक वीडियो चलाई थी, तो वो वीडियो बनाना हम देखते हैं ज़रा। ये एक गूगल का ही टूल है, इसका नाम है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। गूगल का ही टूल है, इसका नाम है गूगल विड्स। ठीक है, ये टूल है, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब देखें, मैंने ये प्रेजेंटेशन इसको शेयर की थी, इसके साथ दी थी, हम शुरू से बनाना देखते हैं। अब इसने क्या किया कि उस प्रेजेंटेशन को इसने वीडियो में बना दिया। अब देखें, जो टेक्स्ट लिख Welcome to AI for Everyone, AI in Real Life. This video will explore how students, professionals, and businesses are using AI today, focusing on text, voice, images, video, automation, and websites/apps. This seminar is organized by RTJ Punjab. This session matters अब because इसने क्या किया है कि इसने इसको वीडियो में कन्वर्ट करके दे दिया। इस तरह यहाँ पे आप देखें, साइड पे ऑप्शंस आ रहे हैं, वॉइस ओवर है, आप यहाँ से ये वॉइस ओवर चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ हैं, जैसे The ये है, voice you select makes a the voice डिफरेंट वॉइस ओवर्स हैं आपके पास। पता नहीं वॉइस आ रही है नहीं आ रही इसकी, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट वॉइसेस हैं जो हम the voice कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो सीन्स हैं इसके अंदर, जैसे कि आप यहाँ देखें तो ऑल सीन्स है ना, सब ने सीन 1 के अंदर ये बोलेगा, ये ऑटो इसने किया, मैंने अच्छा, करना कैसे, आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्लस बटन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आप देखें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें जो मैंने यूज़ किया था, ये आप देख रहे हैं, टर्न योर प्रेजेंटेशन इनटू वीडियोस। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास जो जितनी भी प्रेजेंटेशन पड़ी हैं वो सबकी लिस्ट आ जाएगी। आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और उस प्रेजेंटेशन को, जैसे ये AI फॉर एवरीवन था, इसको यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, और ये इसको क्या करेगा, वीडियो में कन्वर्ट करके दे देगा। तो अब AI टू प्रेजेंटेशन टू वीडियोस, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब ये वॉइस ओवर, इसके ऊपर हम अगर इस पे बात करना चाहें तो हम इस पे घंटा पूरा बात कर सकते हैं। इसकी एडिटिंग है, इसके अंदर जो गूगल ने ये अपना पूरा एडिटर निकाल दिया, इसके अंदर आपने एडिटिंग करनी है, कोई कोई इसके अंदर चीज़ रिमूव करनी है, कोई सीन के अंदर आपने खुद से चीज़ ऐड करनी है, वो सब क्या करेगा, AI आपको करके देगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई अगर क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। जो अभी हमने प्रेजेंटेशन वाला क्रिएट किया, ये मेरे ख्याल से फ्री ऑप्शन है इसके अंदर, और आप इसको ट्राई करें। मैं इसका लिंक भी भेज देता हूँ, एंड के ऊपर मैं नोशन शीट शेयर कर दूंगा जिसके अंदर ये सारे होंगे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं, कमेंट कर दें, हम फिर देखते हैं आगे।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, हम फिर आगे चलते हैं। अभी जो उर्दू वाला है ना ऑप्शन, इसके अंदर नहीं है अभी, क्योंकि वॉइस ओवर जो है ना वो ज़्यादा इंग्लिश के ही हैं इसके अंदर। बाकी उर्दू के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, उसको भी हम फिर कभी किसी सेशन में देखेंगे ज़रूर। अच्छा, वीडियो एडिटिंग के लिए तो और भी काफ़ी टूल्स हैं। हम अभी जो ट्राई कर रहे हैं ना, ये गूगल का है, vids.google.com। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूँगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, तो उसको आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इससे वीडियोस बनवानी है, ये तो हमने कन्वर्ट करवाया था ना इसको, प्रेजेंटेशन को। अगर आपने वीडियोस बनवानी है तो हम वो भी आज एक वीडियो बना के देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पहले बात की थी ना प्रॉम्प्ट्स की, प्रॉम्प्ट सारा यहाँ पे मैटर करता है। तो वीडियोस के लिए यहाँ पे मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। और अब वीडियो सबसे पहले आपने कौन सी बनवानी है, मतलब पोर्ट्रेट में बनानी है, लैंडस्केप में बनवानी है, या फिर स्क्वायर में बनानी है। ठीक है, अब मोबाइल के लिए तो हम स्क्वायर में, पोर्ट्रेट में यूज़ करते हैं ना, तो पोर्ट्रेट साइज़ हमारा मोबाइल साइज़ का होता है। लैंडस्केप ऐसे होता है इस तरह का, और ऊपर आप देख रहे हैं ना आइकन के साथ बना हुआ है। हम अभी क्लिक करते हैं VO3 के ऊपर यहाँ पर, और इधर से आके हम वीडियोस बनवाते हैं। बैक जाके ना हम दोबारा से मोबाइल वाली बनवाते हैं ऐसे वीडियोस। और ये क्लिक करते हैं पोर्ट्रेट के ऊपर, इधर से VO3 क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये मोबाइल स्क्रीन का जो साइज़ है ना वो यहाँ पर आ गया। जी, प्रॉम्प्ट बिल्कुल यही से आप लिखवा सकते हैं। मैंने एआई से ही लिखवाया है। आप खुद लिखेंगे तो आपको जो है ना वो चीज़ आप नहीं दे सकते जो आपको एआई देगा। मैंने एआई से प्रॉम्प्ट पीछे लिखवाया भी था, आपको मैं ज़रा दोबारा से दिखा भी देता हूँ, और आपको मैं दिखा भी देता हूँ एआई का प्रॉम्प्ट जो लिखवाया था। शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं दोबारा से। मैं आपको ज़रा प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ, सिर्फ कुछ सेकंड्स दें मुझे। ये देखें, ये प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे मैंने इसको क्या था, राइट अ प्रॉम्प्ट इन इंग्लिश में लिखवाया प्रॉम्प्ट इससे। इसको मैंने कहा है आपने ये कहना है राइट अ प्रॉम्प्ट, और सारा अपना फिर एक्सप्लेन करने की चीज़। फिर वो क्या करेगा कि आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। ठीक है, एआई से ही प्रॉम्प्ट बनवाएंगे। ठीक है, फिर उससे से आप उसको जैसे मर्जी यूज़ करें, उससे इमेजेस बनवाएं, उससे आप वीडियोस बनवाएं। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन अगर आपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो प्रोडक्ट की आपने इमेजेस तो बनवानी होती है ना, और इमेज के बाद ऑनलाइन अपनी उसकी ऐड भी लगानी होती है। ठीक है, ऐड की आपको पता है पिक्चर्स चाहिए होती है, वो आपको यही बना के देगा। फिर जो आपकी प्रोडक्ट की जो आपने इमेज बनाई है उसका बैकग्राउंड सेट करना, वो पूरा एडिट करना पड़ता है उसको। आप एआई को सिर्फ इमेज शेयर कर देंगे ना, यार ये इमेज है, इसका बैकग्राउंड सेट करके ना इसको प्रोडक्ट इमेज बना दे, वो खुद उसको सेट भी कर देगा, उसका बैकग्राउंड भी ठीक कर देगा, पूरा आपकी प्रॉपर वो इमेज बना के दे देगा। ठीक है, फिर आपको ऐड के लिए जो है ना उसकी पोस्ट भी वो बना के दे देगा जो एआई है। तो इससे आप उससे हेल्प ले सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेज में सारा काम जो है आपको यही करके दे सकता है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट लिखवाना है। अब हम जो नेक्स्ट जा रहे हैं, अभी हम जाने लगे हैं वीडियो के ऊपर, वीडियो जनरेशन के ऊपर। फिर अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, या फिर हम नेक्स्ट सेशन रख लेंगे, वेबसाइट्स का भी हमारा वो रहता है। और अभी घंटे का सेशन तो तकरीबन हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं वीडियो जनरेशन के ऊपर, जिसमें हम वीडियोस बनवाएंगे यहीं से। और फिर देखते हैं वेबसाइट्स और ऐप्स की तरफ भी आएंगे। अभी हम आ रहे हैं यहाँ पर वीडियो जनरेशन के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रॉम्प्ट लिखवाना है। प्रॉम्प्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो अभी हमने इमेज वीडियो बनवानी है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई आइडिया है, फॉर एग्जांपल मैं अभी, आप लोग में से कोई आइडिया बताना चाहता है तो आप कमेंट में बता दें कि इसकी वीडियो बननी चाहिए, या कोई प्रोडक्ट का आइडिया है, या किसी चीज़ का भी आइडिया है, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के देखेंगे अभी इधर ही। तो यहाँ पे मैं
वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ, और प्रॉम्प्ट मैं चैटजीपीटी से लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा राइट अ प्रॉम्प्ट, बल्कि आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। उसके बाद उस प्रॉम्प्ट की हम क्या करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे यहाँ पर। वो प्रॉम्प्ट देंगे ये गूगल के इसको, और ये हमें उसकी वीडियो बना के देगा। यहाँ पे मैं करता हूँ शेयर स्क्रीन, और हम सेलेक्ट करते हैं चैटजीपीटी, इधर आए, ठीक है। मैं बल्कि उर्दू में लिखता हूँ, उर्दू में ही लिखते हैं यहाँ पर हम, इंग्लिश के बजाय। अच्छा, मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो, प्रॉम्प्ट लिख कर दो वीडियो बनाने के लिए। अब हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो है Veo 3.0 से। आइडिया ये है कि एक पाकिस्तानी मैन और माउंटेन्स पर घूम रहा हो और कह रहा हो। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से जो मर्जी लिखवा सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं ये इसको यहाँ से कॉपी कर इसको यहाँ पे सेंड करूँगा, ठीक है। अब ये पूरा प्रॉम्प्ट लिख के देगा। अब ये सारे सीन्स जो हैं वो हर चीज़ उस प्रॉम्प्ट के अंदर लिख के देगा। आप अभी देखेंगे ना, फिर इस प्रॉम्प्ट को हम क्या करेंगे, इसकी वीडियो बनाएंगे। अभी आपके सामने वीडियो बन के आएगी और ऐसे लगेगा जैसे रियल वीडियो है, ठीक है। ये सारा इसने बता दिया है, इसके अंदर पूरा इसने बताया कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा होगा, ऐसे इस तरह होगा। अब आप अपनी मर्जी से जो मर्जी बताएं वो फिर बनाएगा। हम अब इन मुख्तलिफ वीडियोस को, अब ये बनाएगा 8 सेकंड की वीडियो। अब उन वीडियो को कंबाइन करके हम मिनट्स पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। हम उसकी पूरी जितनी मर्जी तरह की वीडियो बना सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, वीडियो बनाते हैं हम। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ यहाँ पर। ये आ गया विड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी प्रॉम्प्ट दूंगा इसको। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शंस हैं, इसमें आप देखें ना, ऊपर ऊपर लिखा है, इसमें 2 ऑप्शन है। एक है एनिमेट भी करवा सकते हो आप, मतलब ऑलरेडी आपके पास कोई इमेजेस हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, एनिमेट करवा सकते हैं। हमारे पास अभी नहीं है तो हम सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। प्रॉम्प्ट जो लिखा है हमने यहाँ पे सिर्फ पेस्ट किया, या जनरेट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने एक आइडिया दिया था कि एक पाकिस्तानी मैन होगा और वो पहाड़ के ऊपर घूम रहा होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा होगा, ठीक है। ये हमारा एक आइडिया था या जो भी था। अब आपके जहन में मुख्तलिफ आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है। आपने जैसे अभी ये जुनेद भाई पूछ रहे थे कि हमने ऑनलाइन सेल करना है तो प्रोडक्ट की मदद कैसे ले सकते हैं। आप प्रोडक्ट की वीडियो बनवा सकते हैं इससे। अगर आप मुझे अभी अपने प्रोडक्ट की अगर फोटो भेजें ना, फॉर एग्जांपल, मैं इसकी आपको यहाँ से वीडियो बनवा के दिखा सकता हूँ, ठीक है। वो जैसे वीडियो आप देखें ना, ऐड चल रही होती हैं, और एड्स के अंदर लोग क्या करते होते हैं, वो वीडियोस बना रहे होते हैं, ठीक है। उतनी एफर्ट होती है, एडिटिंग होती है, फिर भी सही नहीं आती। अब एआई आपको ऐसी बना के दे देगा वीडियो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, मुझे कोई प्रोडक्ट बताएं, हम आप यहाँ पे वीडियो भी बनवा के देखते हैं। उस वीडियो पे आप ऐड चलाएं, उसके ऊपर आपको ज़्यादा कस्टमर क्लाइंट मिलेगा। अभी तो आज देखें ना, आजकल बड़े बड़े बिजनेस भी एआई को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप उन बिजनेस के अंदर एज अ वीडियो एआई और सोशल मीडिया मैनेजर भी आप उसके अंदर वो रह सकते हैं। और इसमें कोई इशू आ गया, कई बार हो जाता है, ऐसे कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें, हमने रेशो भी दे सकते हैं इसके अंदर कि हमें इस साइज का चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। लैंडस्केप आपको पता है, मोबाइल को जब उल्टा करें तो उस तरह का होता है, और जब सीधा मोबाइल हो ऐसे, ये पोर्ट्रेट साइज होता है। तो कई बार प्रॉम्प्ट में भी इश्यू होता है, इसको प्रॉम्प्ट की समझ नहीं आ रही होती। प्रॉम्प्ट जो है हम क्या करेंगे, अगर अब नहीं बनेगी तो चैटजीपीटी को कहेंगे कि आपने प्रॉम्प्ट सही नहीं दिया, प्रॉम्प्ट को रीराइट करके दो, ठीक है। इश्यूज आते हैं तो बंदा उससे मजीद जो है इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो आपने प्रोडक्ट की इमेजेस बनवानी है, प्रोडक्ट की वीडियोस बनवानी है, सोशल मीडिया मैनेज करना है, वो सारा आपको क्या करेगा, ये बना के देगा। अभी यहाँ पे देखें, ये वीडियो जनरेशन हो रही है। इतना आप सबको क्लियर होगा। प्रेजेंटेशन हमने बना के देख ली, इमेजेस हमने बना के देख ली, ईमेल हमने लिख के देख ली, प्रॉम्प्ट्स को हमने आज देख लिया, ठीक है। अभी हमारी जो चीज़ें रहती हैं वो हैं वेबसाइट और ऐप। तो इसको हम, अगर आप कहते हैं तो अभी कर लेते हैं, नहीं तो इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट सेशन रख लेते हैं, क्योंकि आज अभी एक सेशन 1 आवर पे चला गया। तो अभी ये इसने एक वीडियो बनाई है, लेट्स सी क्या चीज़ बनाई है इसने, ठीक है। ये एक इसने वीडियो बना के दी है, और जो हमने एक आइडिया दिया था, अब ये इसने एक वीडियो बनाई है, इसको प्ले करके देखते हैं।
पाकिस्तान जान जिंदाबाद। इसने अल्फाज को वो किया, लेकिन यहाँ पे हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम पैसे की भी बात एंड पे करेंगे। जितना हमने अभी सीखा, ठीक है, इससे हम आगे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इस पे भी हम आएंगे। तो ये देखें, ये एक था 8 सेकंड की इसने वीडियो बनाई है। इसी तरह से अब इसको कहेंगे नेक्स्ट सीन ये बनाए, बैठा हो, ये अल्फाज कहे, इस तरह करके हम पूरी जो है वीडियो या मूवी जो भी है हम उससे वो बनवा सकते हैं। प्रोडक्ट की एड्स बनवानी है, जिस तरह भी है हम उसको वो बना सकते हैं। तो अभी एंड पे हम ज़रा डिस्कस करते हैं इसको, नेक्स्ट सेशन में ले जाते हैं वेबसाइट को और ऐप्स को, जिसमें हम एआई से ना पूरी वेबसाइट बनाना देखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट किस तरह की होगी। मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपके साथ शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर। ये मैं आपको ज़रा वेबसाइट दिखाता हूँ। ये वकास भाई हैं, उनकी एक वेबसाइट थी, वो मैं ज़रा बना रहा था एआई से। एक तो मैं आपको अपनी भी दिखा देता हूँ पर्सनल वेबसाइट, ये भी एआई से बनवाई थी, ओपन हो जाती है। अच्छा, ये वेबसाइट है, आप ये देखें, आप इसकी प्रोफेशनल डिज़ाइन देखें, इस टाइम नाइट मोड के अंदर है। इसके पीछे आप देखें एनिमेशंस हैं और जो कलर चेंज हो रहे हैं। फिर आप जब क्लिक करता हूँ तो एनिमेशंस हैं इसके ऊपर, और फिर इसका आप डिज़ाइन देखें प्रॉपर, और यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। ये टोटल वेबसाइट आप देख रहे हैं ना, इसमें कोई किसी डेवलपर नहीं बनाया, ये टोटल ही एआई ने बनाई है, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट वेबसाइट एआई ने बनाई है, ठीक है। और ये देखें इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। ये सब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन इस पे करेंगे, हम ये वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। तो या फिर जो हमें अभी आज तक किया ना, इसके ऊपर हम एक और सेशन भी रख सकते हैं। फिर ये मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट है, और इसको आप देखें, इसका डिज़ाइन चेक करें, इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, और ये सब क्या है, ये टोटल ही एआई ने बनाई है, ठीक है। इसमें आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको प्रोग्रामिंग, कोई कोडिंग, कुछ भी आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये आपको बनाए, इसमें आप बना सकते हैं। फिर ऐप के ऊपर अभी आप ऐप नहीं दिखा सकता मैं आपको, हम ऐप भी बनाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हम मज़ीद सेशन रखेंगे, पूरे कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद हम डिटेल में बात करें, आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाए। जो दोस्त इंटरेस्टेड होगा, सबके क्वेश्चन होंगे, इस तरह करके हम इसको लेके चल सकते हैं। फिर हमारा जो 3 चीज़ें रहती हैं, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन करेंगे, जिसमें एक तो है ऑटोमेशंस। ऑटोमेशंस क्या होती हैं? ऑटोमेशंस ये होती हैं कि जो काम आप रिपीट करते हैं वो आपका एआई करके देगा, ठीक है। उसको हम इस नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। फिर वेबसाइट बनाना और ऐप बनाना, इसको नेक्स्ट सेशन में लेके जाएंगे। फिर एक ये टूल है नोटबुक एलएलएम है, ठीक है, नोटबुक एलएम। ये क्या है कि इसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपने एक रिसर्च लेनी है, आप पीएचडी स्टूडेंट हैं या आपने कोई थीसिस करना है, वो आप उसकी जो हेल्प है वो एआई से ले सकते हैं। ये हमारी जो 4 चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन करेंगे। अभी तक जो हमने किया है वो वीडियोस को हमने देखा है, प्रेजेंटेशन बनाना हमने देखा है, और उसके बाद हमने क्या देखा है, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, फोटोज़, इन सब चीज़ों को आज हमने बनाना देखा है। तो अब इसको प्रैक्टिकली करें। आपको कोई इशू आता है तो आप बता सकते हैं, इसको हम मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, मज़ीद इसके ऊपर हम सेशंस करेंगे। अब हम अर्निंग के ऊपर आके बात करते हैं, जो यहाँ पे दोस्त भी पूछ रहा था कि इसे हम कमा कैसे सकते हैं, उस पर भी हम आते हैं। अब देखें इसमें अच्छा, हम बात करते हैं अर्निंग के ऊपर। हमने अभी क्या देखा था, जो चीज़ हमने देखी ना, उससे रेलिवेंट हम बात करेंगे अर्निंग की। बाकी जो बाकी का सेशन है उसमें बाद में देखेंगे। अर्निंग के ऊपर अगर आप बात करती हैं तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की आप फाइवर पे सर्च करें, या आप बिजनेस फाइंड करें। फाइवर पे अगर आपने नई सर्विस देनी, ये पूरा एक सेशन इस पे रख सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप बिजनेस पे जाएं जिनके सोशल मीडिया मैनेज नहीं हो रहे, मतलब जिन पे पोस्टिंग है ही नहीं, जो लोग चला ही नहीं रहे, ठीक है, उनको जाके कहें कि मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज करूंगा, डेली बेस पे पोस्ट किया करूंगा, ठीक है, तो आप मुझे ये हायर कर लें, ठीक है। सोशल मीडिया की आप मैनेजमेंट ले सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट की जो इमेजेस होती हैं, वीडियो, एक वीडियो में लोग लाखों से जो है ना खर्च करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की वीडियोस बनाने के लिए।
वो प्रोडक्ट्स की जो वीडियोज़ हैं, वो बनवाने की सर्विस आप दे सकते हैं, ठीक है? जैसे जुनैद भाई ने जिस तरह अभी सवाल किया था, तो प्रोडक्ट हम अपनी ऑनलाइन के लिए कैसे हेल्प ले सकते हैं, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आप एआई की हेल्प से बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो बिज़नेस ऑनलाइन सेल कर रहे हैं ना, उनको आप ये सर्विस दे सकते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस बना के दूँगा, ठीक है? उसके ऊपर हम सेशन पूरा एक रख सकते हैं। वीडियोज़ भी बना सकते हैं। फिर आपने वर्चुअल असिस्टेंट्स आजकल लोग हो हायर होते हैं, जैसे इमेजेस वो ईमेल सेंड करने के लिए आप ईमेल मैनेज करेंगे, वो सारा आप फिर इन सब के लिए आप जो है ना वो इसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर आगे हम जब जाएँगे ना वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट बनवा के अलग से आप अर्निंग कर सकते हैं, ऐप बना के अलग से आप कर सकते हैं। ऑटोमेशन की सर्विस आप अलग से दे सकते हैं, ठीक है? ये पूरी-पूरी एक फ़ील्ड्स हैं। सोशल मीडिया की अलग है, वीडियो एडिटिंग की फ़ील्ड अलग है, ठीक है? एआई मैनेजमेंट की अलग है, ठीक है? वेबसाइट अलग है, ऐप अलग है, ये सब एक अलग-अलग फ़ील्ड है। इन सबको अलग-अलग सर्विस आप दे सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत लंबी बातें हो जाएँगी, लेकिन हम इसको मज़ीद इंशाल्लाह लेके जाएँगे। अभी तो ये स्टार्टर हमारा एक इंट्रोडक्शन सेक्शन था, प्रैक्टिकली हम मज़ीद इसको लेके जाएँगे। तो आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है तो बताएँ, तो हम वो अभी डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने इधर वीडियो में आके क्वेश्चन करना है, वॉइस पे आके करना है तो मुझे बता दें, मैं यहाँ पे हम शेयर कर देता हूँ। ये लिंक शेयर किया है, इसके ऊपर आप आ सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन करना है, तो वॉइस में आना है, तो आ सकते हैं आप। अच्छा, जो ये वॉइस एआई वाला सिस्टम है ना, इसके ऊपर हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। ये पूरी एक अलग फ़ील्ड है। एआई वॉइस एआई के ऊपर जो है ना, वो 11 लैब्स एक टूल है, उसके थ्रू पूरा ये सीखना पड़ता है कि आप नंबर लगा देते हैं, जब कोई कॉल होती है तो एआई उसका जवाब देता है, ठीक है? एआई कॉल्स करता है, एआई ऑर्डर बुक करता है। आजकल ये पाकिस्तान में भी चल रहा है, ठीक है? इसके ऊपर भी हम कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग कनेक्शन में रहे, आप लोगों का अगर इंटरेस्ट हुआ, तो हम इसके ऊपर पूरा एक कॉल एजेंट बनाएँगे। कॉल एजेंट होता है, एजेंट को हमने देखना भी, आपको पहली बार सुन रहे होंगे, एजेंट्स को देखना है जो पूरी कॉल मैनेज करेगा, और ये सर्विसेज़ आप अब एक उसको दे सकते हैं, बिज़नेस को दे सकते हैं, ठीक है? तो अभी किसी और का अगर क्वेश्चन है तो मुझे बताएँ। जी यासिर भाई, बिल्कुल आप एआई से प्रॉम्प्ट बनवा सकते हैं, और एआई मैंने प्रॉम्प्ट बनवाना भी यहाँ पर दिखाया भी था कि कैसे बना सकते हैं। एआई को आप क्या करेंगे, उसको बताएँगे कि मुझे ये चीज़ बनवानी है, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनवानी है या वीडियो बनवानी है, मुझे इसका प्रॉम्प्ट लिख के दो। और उसको सारा आप आइडिया दोगे कि ये होना चाहिए फ़ोटो वीडियो के अंदर, वो आपको प्रॉम्प्ट लिख के देगा। उस प्रॉम्प्ट को फिर आपने क्या करना है, वीडियो बनाने वाले टूल को देना है और फ़ोटो बनाने वाले टूल को देना है। तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर बना के दे देगा वीडियो। और जी, अली भाई, अर्निंग का मैंने बता दिया है कि आप अभी तक जितना डिस्कस किया है ना, वेबसाइट को बाद में देखेंगे, वेबसाइट ऐप उससे अलग कमा सकते हैं, लेकिन अभी आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस दे सकते हैं, उनको पोस्ट पोस्ट बना के दे सकते हैं, वीडियो प्रोडक्ट की वीडियो बना के ये सर्विस आप दे सकते हैं। ये सब आप बिज़नेस को दोगे। जो बिज़नेस ये काम नहीं कर रहे, उनको आप मैसेज करो, उनके पेजेस पे जाके। इसके ऊपर हम सेशन रखेंगे कि किस तरह आपने कॉन्टैक्ट करना है बिज़नेस के साथ, किस तरह उनसे आपने अर्निंग करनी है, ठीक है? तो ये पूरा ये अभी इंट्रोडक्शन था। इसके ऊपर आप मज़ीद अगर सर्चेज़ करेंगे, आपको क्वेश्चन होगा, तो आप वो पूछ सकते हैं। अब तो ये मैंने लिंक शेयर किया है, किसी ने अगर पूछना है वॉइस पे आके, तो आप इधर आके पूछ सकते हैं क्वेश्चन।
मैं आपके साथ ना एंड पे एक शीट शेयर कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर प्रॉम्प्ट्स भी हैं कुछ, और इसके अंदर कुछ टूल्स की ना लिस्ट भी है और उनके लिंक्स भी हैं। इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस शीट को अपडेट करता रहूँगा मैं टाइम बाय टाइम। इसके अंदर मज़ीद भी प्रॉम्प्ट्स और टूल वो ऐड करता रहूँगा, ये आपकी हेल्प देंगे। इसको आप टूल को यूज़ करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इश्यू है, कोई समझ नहीं आ रही तो बताएँ। इसके ऊपर हम जब नेक्स्ट सेशन वेबसाइट का होगा ना, तो फिर हम मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट के अंदर। इस लिंक पे जाएँ और आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आज हमने डिस्कस किया है, इसमें से कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐड किए हैं, इसके अंदर प्रॉम्प्ट भी ऐड किए हैं और टूल्स की भी लिस्ट है इसके अंदर। ये शेयर कर रहा हूँ मैं चैट के अंदर। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, और एंड पे मैं आपको ये वीडियो भी दोबारा से दिखा देता हूँ जो हमने एआई से बनवाई है, और बहुत ज़बरदस्त बना के दिया इसने। This video will explore how students, professionals, and businesses are using AI today, focusing on text, voice, images, video, automation, and websites/apps. This seminar is organized by RTJ Punjab. This session matters because AI is already a part of daily life. The key is knowing how to use it, as AI helps both beginners and experts alike. AI is not the future, it's the present. This video is for everyone: students, professionals, business owners, freelancers, and beginners with zero AI background. You don't need technical skills, you just need curiosity. In simple terms, AI acts as a smart assistant. It helps you think faster and saves you time, not effort. Remember, AI does not replace humans, it supports them. We will cover several categories of AI, including text and writing, voice and speaking, images and video, presentations and sheets, automation and websites, apps and software. AI for text is the foundation layer. Tools like ChatGPT and Gemini can explain topics simply, write and rewrite content, summarize information, and brainstorm ideas based on your prompts. Students can use AI to explain hard topics, summarize long notes, create study plans, and improve assignments. AI removes confusion. Learning still stays with you. For professionals, AI can help with emails and reports, meeting summaries, presentations, and learning new skills faster. AI removes repetitive work, so you can focus on thinking. Business owners and freelancers can leverage AI for social media content, ads and captions, proposals, and client replies. AI saves money before it makes money. The most important skill is prompting. A simple formula includes defining who you are, what you want, the context, and the output format. Tailoring your prompt is key to effective results. AI voice assistants, or Talking AI, can talk like a human, explain concepts verbally, help beginners, and be used for language practice. This is huge for beginners and accessibility. For video, AI helps with short videos, ads, explainer videos, and social media reels. Video creation is becoming faster, cheaper, and easier with AI tools. When creating videos, I can create slide outlines, write slide content, improve flow, and simplify language. AI effectively removes the quote blank slide problem. AI automation means multiple AI tools working together, resulting in less manual work and faster workflows. Examples include auto email replies, lead tracking, and task automation. Real-world automation examples include processes like form to sheet to email or chatbot to customer support. Automation is where AI saves the most time. AI for websites and apps helps build websites, mobile apps, and desktop tools. The key concept is, you describe, AI helps build. It is important to understand what AI cannot do. It cannot think like a human, replace human judgment, or take responsibility. AI gives suggestions. Humans,
Make decisions. To start using AI today, follow these steps. 1. Pick one tool to master. 2. Use it daily. 3. Ask better questions by refining your prompts. 4. Practice. And don't fear mistakes. Here is the final message. I won't replace you. People who use AI will. Stay curious. Start small and practice daily to stay ahead. Thank you for your time. We welcome any questions you may have about the content covered in this video. ये जो अभी आपने ये वीडियो देखी है, ये एआई ने बनाई है, ठीक है? और वो मैंने जो आपको अभी बताया था टूल, उसी से बनाई है। और एक जो मज़े की चीज़ है कि इसके अंदर नीचे आप देख रहे थे इसके जो कैप्शंस होते हैं ना, वो इसके अंदर नहीं है। आप कैप्शंस भी ऐड करवा सकते हैं। तो अभी ये वीडियो हमारी यहाँ पे हम एंड करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग होगी, आप सब लोग इसको दोबारा से देखें। अगर कोई इश्यू होगा तो आप लोग पूछें। मज़ीद नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम अर्निंग पे बात करेंगे और इसको देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिजनेसेस से। और मज़ीद एक सेशन नहीं, इसके ऊपर मल्टीपल सेशन हो सकते हैं। वेबसाइट बनाना देखेंगे, उस पे अलग सेशन रखेंगे, ऐप बनाने का अलग सेशन हम रखेंगे, ऑटोमेशंस कैसे कर सकते हैं, वो क्या होती हैं, इसका अलग सेशन रखेंगे। और हर सेशन का मतलब है एक सेशन से एक अर्निंग सोर्स आपके पास आ जाएगा। बस आपने उसमें मेहनत करनी है और फिर उससे इंशाल्लाह कमा भी सकते हैं आप इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखें ना, मैं आपको एक लास्ट बस ये दिखा के और वीडियो क्लोज करता हूँ। और इधर हम जाते हैं, शेयर स्क्रीन करता हूँ मैं एआई। ये अब ये देखें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। इसमें एक आ रहा है यहाँ पर साइड पे आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कैप्शंस का। इसमें मैं अगर कैप्शन ये चूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अब देखें मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो ये सारा कैप्शन जो है Welcome to इस कैप्शन AI को मैं for सेट कर, everyone. ठीक है, जिधर मर्जी सेट कर लूँ मैं और ये वो चलेगा। अब कैप्शन की सेटिंग करनी है, मैंने छोटा करना है, बड़ा करना है, ऑटो होगा। मैंने कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर, कुछ भी नहीं लिखा, ये खुद। और AI in real life. This video will ये explore नीचे how लिखा हुआ students, professionals, and businesses are using AI today, focusing on text, presentation AI ने बनाई। voice, images, video, automation, and websites/apps. This Presentation भी seminar AI ने is बनाई, organized by इसकी video भी AI RTJ ने बनाई, Punjab. इसके नीचे text This भी AI ने session matters because AI is already a part of daily life. The key is knowing how to use it, as AI helps both तो beginners. आज के लिए इतना ही होता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे जिसमें वेबसाइट, ऐप्स और इसको मज़ीद हम देखेंगे, अर्निंग सोर्सेज प्रैक्टिकली देखेंगे। और टूल नेम मैंने एक यहाँ पे कमेंट किया, नीचे आप देख लें, कमेंट किया, उसके अंदर लिंक दिया, उस पर लिंक पे जाएंगे तो प्रॉम्प्ट भी हैं उसमें मौजूद हैं और टूल्स भी हैं, ठीक है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, बस ये फिर हम इसको आज सेशन को इधर ही क्लोज करते हैं। जज़ाकल्लाह। शीट देखें, इधर कमेंट में ही शीट शेयर की है मैंने, नोशन शीट है, ये वाली शीट शेयर की है जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, इसको आप वो कर लें। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन होगा आप इधर कमेंट में ही शेयर कर दें, जिससे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जी ठीक है, हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया सबका। अगर दोबारा से आप वीडियो देखें, कोई इशू हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, स्ट्रीम हम क्लोज करने लगे।